Okay, so we've looked at these 2 days. We've looked at law, we've looked at grace, we've looked at how do we handle law today. Before I begin the teaching, I just want to give some feedback that we've got in the last 2 days. I've received some WhatsApp messages, sharing some concerns that have come out during the breakout discussions, the concerns of how in the breakout they've picked up a tendency of people depending on the law, almost scared to walk by grace. And there was पिछले another, sorry, Hitesh. पिछले 2 दिनों में हमने देखा व्यवस्था क्या है, व्यवस्था को कैसे संभालना है, अनुग्रह को देखा है, अनुग्रह के बारे में सीखे हैं। और पिछले 2 दिनों में ऐसा हुआ है कि काफी लोगों ने हमें जो है फीडबैक भेजा है, और एक तरीके से लग रहा है कि कुछ लोग जो है थोड़ा घबराए हुए से भी कि दोनों चीजों को कैसे संभालना है। तो आओ हम आज आगे बढ़ते हैं। You know, there was another breakout room that talked about balance, that we need to balance our lives, law and grace. And I think it's even wrong to even think like that. These are two different covenants. Don't balance between the two. Walk in the new. The old is obsolete and not for us. You have to leave the law behind to be able to walk in grace today. और एक ब्रेकआउट रूम में ये चर्चा हो रही थी कि ये दोनों ही जो है वाचा जो है, इन दोनों को हमें संभालना है, दोनों के बीच में संतुलन रखना है, दोनों को लेकर आगे बढ़ना है। ये सोच ही बिल्कुल गलत है। हमें समझना है कि पुरानी वाचा जो थी, पुरानी व्यवस्था जो थी, वो पुरानी थी, वो रद्द हो चुकी है। हमें आगे बढ़ना है नई वाचा के साथ, नई वाचा में जीते हुए। Yesterday we saw how the old covenant is obsolete and that we are now to no longer live under the law. Today we're going to learn how to live this new life. कल हमने देखा कि पुरानी वाचा कैसे पुरानी हो गई है, रद्द हो गई है, और अब हम नियमों के यानी कि व्यवस्था के तले नहीं है। आज हम सीखेंगे इस जीवन को कैसे जीना है। Romans 10 verse 4 says this, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. रोमियो 10:4 कहता है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। Those who have believed in Jesus have the Holy Spirit come and dwell in them. They are now not to depend on the law, but to live in grace, being led by the Holy Spirit. जिन्होंने यीशु में विश्वास किया है, उनके अंदर पवित्र आत्मा आकर बसता है। अब उन्हें व्यवस्था पर निर्भर नहीं होना है, पर आत्मा की अगुवाई में अनुग्रह में जीना है। Romans 7 verse 6 says, but now by dying to what once bound us, we've been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. रोमियो 7:6 कहता है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। So you need to walk in the new way of the Spirit. If you use law for sanctification, you're going to struggle, as you will constantly feel condemned when you fall or fail to live up to a standard that you have set. आपको आत्मा के इस नए मार्ग पर चलना होगा। अगर आप अपने पवित्रकरण के लिए व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं तो आप संघर्ष करेंगे, क्योंकि आपको लगातार दोष महसूस होगा जब भी आप अपने ठहराए स्तर पर जीने के दौरान गिरते या फिसलते होते हैं। Romans 8:1 says, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. रोमियो 8:1 कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। So there's no condemnation in Christ. The Spirit of God brings conviction of sin, but no condemnation. Conviction leads us to repentance. We can confess and receive forgiveness. Hallelujah. जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा पाप का एहसास लाता है, पर दंड की आज्ञा नहीं। पाप का एहसास हमें पश्चाताप की ओर ले चलता है। हम कबूल करके माफी पा सकते हैं। हालेलुया। But then one can say grace is so easy, and some tend to interpret grace as a license to sin. Can we just keep sinning because we are under grace? Paul answers emphatically, by no means. We died to sin. How can we live in it any longer?
पर फिर कुछ लोग कहेंगे अनुग्रह इतना सरल है, और कुछ लोग कहेंगे इसे पाप करने का एक तरीके से लाइसेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम पाप करते रहे क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन है? पौलुस स्पष्टता से इसका जवाब देता है, कदापि नहीं। हम पाप के लिए मर गए हैं, अब हम इसमें कैसे जीवित रह सकते हैं? So we don't keep on sinning, but we don't get back to the law for holiness. तो हम पाप करते नहीं रहते और ना ही हम दोबारा पवित्रता की व्यवस्था की ओर लौटते हैं। Romans 6:14 says, sin shall no longer be your master, because you are now not under law, but under grace. रोमियो 6:14 कहता है, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। But what about the moral laws? What about the 10 commandments? Do we not need them to live a moral life? Grace actually leads us to live a holier life than the law could ever do. मगर फिर आप पूछेंगे नैतिकता की व्यवस्था का क्या, 10 आज्ञाओं का क्या? क्या हमें पवित्र जीवन जीने के लिए इनकी जरूरत नहीं? सच में अनुग्रह हमें उससे भी अधिक पवित्र जीवन जीने की ओर ले जाता है जो व्यवस्था नहीं कर पाती। Let's look at what Jesus taught in the Sermon of the Mount. Jesus quotes the law in Matthew 5 and he says, "You have heard that it was said, you shall not murder. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth." आओ देखें यीशु ने पहाड़ी उपदेश में क्या सिखाया। यीशु व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहते हैं, मत्ती 5:21 में आप देख सकते हैं इसे। यीशु कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। तुम सुन चुके हो व्यभिचार न करना। तुम सुन चुके हो आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। And then he raises the standard of each law and he says, "But I tell you, do not be angry with your brother or sister. I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also." फिर वह इनमें से प्रत्येक नियम का स्तर और ऊंचा करते हुए कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने भाई या बहन से गुस्सा मत कर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई किसी औरत को बुरी नजर से भी देखे, उनसे अपने दिल में व्यभिचार कर दिया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, किसी बुरे व्यक्ति से दूर मत रह। यदि कोई तेरे दाएं गाल पर चाटा मारे, तो तू अपना दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दे। What's he saying? He's saying this. Listen, when your heart is transformed, you don't need the law. Walking with Jesus with a transformed heart takes you to a higher standard than the law. वह क्या कह रहा है यहां पर? क्या कह रहा है? सुन, जब तेरा दिल बदल जाता है तो तुझे व्यवस्था की जरूरत नहीं है। एक बदले हुए दिल के साथ, यीशु के साथ चलना आपको व्यवस्था से भी ऊंचे स्तर की ओर ले जाता है। Let me explain. So why will you not murder? Not because it says in the law, do not murder, but because your heart is now overwhelmed by grace. You have love in your heart for others. Now you don't think of murder. Your heart now compels you to love. मैं आपको समझाता हूं। तो आप हत्या क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं क्योंकि व्यवस्था में लिखा है हत्या मत कर, पर इसलिए क्योंकि आपका दिल अनुग्रह से भर गया है। आपके दिल में दूसरों के लिए प्यार है। अब आप हत्या के बारे में ही नहीं सोचते। आपका दिल आपको प्यार करने के लिए विवश करता है। Friends, do you know that the law is at a much lower standard than the new covenant? Did you know there was no law telling us to pray? There was no law telling us to forgive others. There was no law to stop polygamy. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि व्यवस्था का स्तर नए वाचा से कई गुना नीचे है? क्या आप जानते हैं कि कोई व्यवस्था हमें प्रार्थना करने को नहीं कहती? कोई नियम हमें दूसरों को माफ करने के लिए नहीं कहता? कोई नियम हमें अनेक शरीर के रिश्ते रखने से नहीं रोकने को कहता? In the new covenant, Jesus raises the bar and says it is possible to live a holy life. The law cannot be the guide for sanctification. Grace of God has appeared
and it teaches us to say no to ungodliness. नई वाचा में यीशु स्तर को ऊंचा कर देता है और कहता है एक पवित्र जीवन जीना मुमकिन है। पवित्रकरण के लिए व्यवस्था मार्गदर्शक नहीं हो सकती। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है और वह हमें गलत कामों को ना कहना सिखाता है। Listen to this, friends. A Christian who walks by the Spirit deliberately will fulfill the Mosaic law accidentally. इस बात को ध्यान से सुने। एक मसीही जो जानबूझकर आत्मा से चलता है वह अनजाने में ही मूसा की व्यवस्था का पालन कर देता है। Hallelujah. As we walk by the Spirit, we see the fruit of growing in us. Galatians 5:22-23 says the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And then it says, against such things, there is no law. जैसे हम आत्मा में चलते हैं, हम अपने अंदर फल को बढ़ते हुए देखते हैं। गलातियों 5:22 और 23 कहता है, दोस्तों हमें आत्मा की जरूरत है, ना कि व्यवस्था की। पर जो यीशु में विश्वास नहीं करता, You've gone ahead, Hitesh. One minute. Friends, we need the Spirit, not the law. दोस्तों हमें आत्मा की जरूरत है, ना ही व्यवस्था की। But someone who does not believe in Jesus may still need the law. He needs the law that says, do not murder, to refrain him from murdering. पर जो यीशु में विश्वास नहीं करता, उसे अभी व्यवस्था की जरूरत हो सकती है। उसे वह व्यवस्था चाहिए जो कहती है हत्या मत कर, ताकि वह हत्या न करे। 1 Timothy 1:9 says, we also know that the law is made not for the righteous, but for the lawbreakers and rebels, the ungodly and sinful. So the law is for the unrighteous, but for those who believe are under grace, and we walk by the Spirit. तो 1 तिमोथी 1:9 कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं, पर अधर्मियों और विद्रोहियों, अपवित्र और पापियों के लिए बनाई गई है। तो व्यवस्था अधर्मियों के लिए है, पर जो विश्वास करते हैं वह अनुग्रह के अधीन है और आत्मा से चलते हैं। Having said that, Christians still fall into legalism or licentiousness. Let's look at a couple of examples. Listen to this. You are free to wear ornaments and free not to wear ornaments. But if you make this a rule and say that not wearing ornaments is holier, then you trap yourself. इसके बावजूद मसीह या तो नियमबद्धता में पड़ जाते हैं या फिर गैर जिम्मेदारी जीवन में। आइए कुछ उदाहरण को देखते हैं। आपको आजादी है अपने गहने पहनने या गहने ना पहनने के लिए, पर अगर आप एक नियम बना लेते हैं कि गहने ना पहनना ज्यादा पवित्र है, तो आप खुद को फंसा लेते हैं। You will feel more righteous than the one who wears. And you will look down on that person and you will judge, saying, one day she will mature and become as holy as I. We forget our righteousness is based only on the finished work of Jesus Christ. आपको उनसे ज्यादा धर्मी महसूस होगा जो गहने पहनते हैं, और आप उनको नीचा देखोगे और यह कहते हुए न्याय करोगे, एक दिन वह परिपक्व होगी और मेरे जैसी पवित्र बनेगी। हम भूल जाते हैं कि हमारी धार्मिकता सिर्फ यीशु के पूरे किए कार्य पर ही टिकी हुई है। Even something good like daily prayer and Bible reading can trap us. It is excellent to have a discipline to pray and to read scriptures, feed ourselves. This discipline helps us grow in God. But if you and I know, there are times that we fail to do that consistently and we can feel depressed about it. रोज की प्रार्थना और बाइबल वाचन जैसी अच्छी बातें भी हमें फंसा सकती है। प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना और खुद को भरना अच्छा अनुशासन है। यह अनुशासन हमें परमेश्वर में बढ़ाने में मदद करता है। पर आप और मैं जानते हैं कि कई बार हम लगातार यह नहीं कर पाते और तब हम निराश हो सकते हैं। If you think you are more righteous when you fulfill your discipline and condemn yourself when you don't, you have shifted into the mindset of law. Listen, you can rejoice in Christ and know that you are accepted in Him, even when you don't make the mark,
in your spiritual disciplines. That's grace. जब आप अपने अनुशासन पर स्थिर रहने से खुद को ज्यादा धर्मी और स्थिर न रहने पर दोषी महसूस करते हो, तो आप व्यवस्था की मानसिकता में चले गए हैं। जब आप अपने आत्मिक अनुशासन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, आप तब भी मसीह में आनंदित हो सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको अपनाया गया है। यह अनुग्रह है। Grace, my friends, is liberating, and simultaneously the Spirit empowers us to grow in holiness. अनुशासन हमें आजाद करता है और उसके साथ आत्मा हमें पवित्रता में बढ़ने में मदद करता है। Since we receive grace, we also ought to give it to others. The Christian life is not a solo walk with God. We are called as the people of God to walk in community with one another. So living by grace needs to be outworked with others. अब जबकि हमने अनुग्रह पा लिया है, हमें उसे दूसरों को भी देना है। मसीह जीवन परमेश्वर के साथ अकेले में नहीं जिया जाता है, हमें परमेश्वर के लोग कहकर बुलाया गया है ताकि हम एक समाज में एक दूसरे के साथ चल सके। अनुग्रह में जीने का प्रयोग दूसरों के साथ होता है। Is a man living the life of grace? This can be seen not only by his personal walk of holiness by the Spirit, but also by how he relates with others. Grace is demonstrated in his interactions with people. क्या एक व्यक्ति अनुग्रह में जी रहा है? हम यह हम देख सकते हैं ना सिर्फ उसके आत्मा के द्वारा पवित्रता का जीवन जीने से, पर इससे भी कि वह दूसरों के साथ कैसे संबंध रखता है, दूसरों के साथ उसके मेलजोल से अनुग्रह झलकता है। We are called to give grace to others. If we've understood grace and have received grace, only then will we be able to give grace to others. The biblical principle is freely you have received, freely give. हमें दूसरों को अनुग्रह देने के लिए बुलाया गया है। अगर हमने अनुग्रह को समझा है और अनुग्रह को पाया है, तभी हम दूसरों को अनुग्रह दे सकते हैं। यह एक बाइबल का सिद्धांत है, जो हमने भरपूरी से पाया है उसे भरपूरी से दे। 1 Peter 4:10 says this, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. We are to be good stewards of this grace. पत्रस 4:10 कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह से भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। हमें इस अनुग्रह के अच्छे सेवक बनना है। Let's look at forgiveness to start with. People wrong us, we get hurt, we struggle with it, and the natural tendency is to hit back or take revenge. It's hard to forgive someone who's done us harm, but it's possible. आइए शुरू में हम माफी को देखें। लोग हमारे साथ गलत करते हैं, हमें चोट पहुंचती है और हमें उसके साथ जूझते हैं। पलटवार करना या बदला लेना एक आम प्रतिक्रिया है। उस व्यक्ति को माफ करना कठिन होता है जिससे हम नुकसान पहुंचाए, पर यह मुमकिन है। Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Amen. इफिसियों 4:32 और कहता है, और एक दूसरे पर कृपा और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Now Jesus tells us a story of a servant who has a debt of 10,000 bags of gold to the king, and that's huge. And the servant is unable to pay it. The king forgives the debt and lets him go free. But then this man does not forgive the debt of his fellow servant who owed him just 100 silver coins. The king was upset and said, shouldn't you have done the same as I did to you? This story reminds us that our sin before a holy God was far greater what others do to us. You exhibit grace by forgiving others. यीशु एक कर्मचारी की कहानी बताता है जो राजा के प्रति 10,000 बोरी सोने का कर्जदार था। बहुत ज्यादा है ये, और वह सेवक चुका नहीं पाया। राजा उसका कर्ज माफ करता है और उसे आजाद कर देता है, पर यह व्यक्ति अपने सहकर्मी का कर्ज माफ नहीं करता जिसने उसे 100 चांदी के सिक्के उधार लिए थे। राजा जो है वो नाराज हो गया और उसे कहने लगा, क्या तुझे भी वैसा ही नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने तेरे साथ किया था?
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एक पवित्र परमेश्वर के आगे हमारे पाप उनसे कई अधिक बड़े थे, जो जो दूसरे लोग हमारे खिलाफ करते हैं। आप दूसरों को माफ करने के द्वारा अनुग्रह दिखाते हैं। Now let's look at acceptance. We live in a world where there's so much rejection. Divisions are caused because of class, race, color, caste, ethnicity, and we can so easily reject people. आइए अब हम स्वीकार करने की बात को देखें। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत ठुकराया जाना होता है। वर्ग, नस्ल, रंग भेद, जाति वगैरह की फूट है और हम बहुत आसानी से लोगों को ठुकरा सकते हैं। Romans 15:7 says, accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. He accepted us just as we are, and we can do the same. रोमियो 15:7 हमसे कहता है, इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हम जैसे थे, उसने हमें वैसे के वैसे ही अपनाया और हमें भी ऐसे ही और हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। Let's look at love. Everyone wants to be loved, but we tend to think more of receiving love than giving it. Jesus said it is more blessed to give than to receive. आइए अब प्यार को देखें। हर कोई प्यार चाहता है, पर हम देने से ज्यादा लेने के ऊपर ध्यान देते हैं। यीशु ने कहा, लेने से ज्यादा देना धन्य है। You remember I had mentioned how Jesus would quote an Old Testament law and then raise it to a higher standard in the new covenant? Listen to this one on love. Jesus said, a new command I give you, love one another. What's new about this command? आपको याद होगा मैंने कहा था कि किस तरह यीशु पुराने नियम से व्यवस्था का उल्लेख करता है और फिर उसे नई वाचा में और भी ऊंचे स्तर पर रख देता है। आइए इसे देखें जो प्रेम के विषय में है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। इस आज्ञा में नया क्या है? Because Jesus had said earlier, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. The old command said, love your neighbor as yourself. यीशु ने कहा था, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे मन से प्रेम कर। यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरी इसी तरह है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पुरानी आज्ञा में कहा था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और अब And now Jesus says, love one another as I have loved you. That's a higher standard of love we are to give to others. और अब यीशु कहता है, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। यह प्यार का बहुत ऊंचा स्तर हो गया है। 1 John 4 says, we love because he first loved us. 1 यूहन्ना 4 कहता है, हम प्यार कर सकते हैं, हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। So friends, giving grace to others is forgiving, accepting, loving. How? Just as Christ has done for us. तो दोस्तों, दूसरों को अनुग्रह देने का मतलब है उस तरह माफ करना, अपनाना और प्रेम करना जैसा यीशु ने हमसे किया है। We must believe that grace works, not just for our own lives, but grace works when we give it to others. हमें विश्वास करना है कि अनुग्रह काम करता है, न सिर्फ हमारे अपने जीवन में, पर अनुग्रह काम करता है जब हम उसे दूसरों को देते हैं। Sometimes we add laws quickly onto others because we think that the rules and the laws will work better than grace. Somehow we are unable to let grace work in people's lives and we quickly jump to rules. कई बार हम बहुत जल्दी दूसरों पर नियम लाद देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नियम और व्यवस्था अनुग्रह से बेहतर काम करेगी। हम दूसरों के जीवन में अनुग्रह को कार्य करने नहीं देना चाहते और मदद के लिए जल्दी उनमें नियम लाद देते हैं। You know, we are all still work in progress. हम सब के जीवन में अभी काम जारी है। A man of grace rejoices in salvation. He accepts sinners, not the sin,
but the person, and trusts that the work of God is in their lives. हम सब के जीवन में अभी काम जारी है और एक अनुग्रहकारी व्यक्ति उद्धार में आनंद मनाता है, दूसरों को अपनाता है, पाप को नहीं पर लोगों को, और विश्वास करता है कि उनके जीवनों में परमेश्वर का कार्य जरूर होगा. With the prodigal son, the father is full of grace. He runs to meet him, he forgives him, he embraces him, kisses him, celebrates him. He is extravagant and lavish in his demonstration of grace. खोए पुत्र की कहानी में पिता अनुग्रह से भरपूर है. वह दौड़कर उससे मिलता है, उसे माफ करता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है, उसमें आनंद मनाता है. वह भरपूरी के साथ और खुलकर अपना अनुग्रह दिखाता है. This is what the Lord has done for us, and that is what he wants us to do to others. यही प्रभु ने हमारे साथ किया है और यही वह चाहता है हम दूसरों के साथ करें. Let me end by saying this. Rejoice in what Jesus has done for you. Don't live under the law. Live victoriously in grace and extend this grace to others as well. मैं ये कहते हुए अंत करना चाहता हूं, यीशु ने आपके लिए किया है, उसमें आनंद मनाओ, व्यवस्था के अधीन मत जियो, अनुग्रह में जीवन जियो और इस अनुग्रह को दूसरों को भी दो. Amen. Amen. I think we are now in the process of on this journey to see thousands of lives transformed. और हम इस सफर पर निकले जहां पर हम हजारों जीवनों को परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं. Through hundreds of churches. सैकड़ों कलीसियाओं के द्वारा. In tens of nations. और दसों राष्ट्रों में. For our new friends and pastors that have joined us this year. और हमारे जो नए मित्र और नए पास्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं इस वर्ष में. We felt the Lord give us this vision a couple of years ago. और प्रभु ने हमें ये दर्शन दिया कुछ सालों पहले. And we did not know how are we going to accomplish this amazing vision to see hundreds of churches in tens of nations blessing thousands of lives. और हम सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से हम इस दर्शन को पूरा कर पाएंगे जो है कि हम दसों राष्ट्रों में सैकड़ों कलीसियाओं के द्वारा हजारों जीवनों को परिवर्तित होते हुए कैसे देख पाएंगे. A group of men and women had got together and developed this whole strategy. और कुछ स्त्रियों और पुरुषों के समूह ने मिलकर इस रणनीति को बनाया. In India, many of us leaders got together over 3 days and began to think and pray in the Lord, thinking, how do we develop this? How do we accomplish this vision for Jesus? और भारत में कई अगुओं ने कई 3 दिन के लिए प्रार्थना करते रहे और चर्चा करते रहे, ये सोचते हुए कि इस दर्शन को पूरा हम किस प्रकार कर सकेंगे. We developed almost 25 to 30 different types of outcomes, ranging from evangelism to church planting to caring for churches to money matters to the poor, a whole range of different ideas and thoughts that we now gather to call them outcomes. और हम ऐसे 25 से 30 ऐसे एक नतीजे या लक्ष्य को हम एक तरह से तैयार कर पाए. कलीसिया से लेकर कलीसिया को बोना, आर्थिक स्थिति, गरीबों जरूरतमंदों की देखरेख, इन सब बातों को लेकर हमने अलग अलग नतीजे बनाए या लक्ष्य तैयार किए जिससे हम पूरा कर सकें. There were about 25 to 30 of these various outcomes. और ये जो लगभग 25 से 30 ऐसे नतीजे कहे या लक्ष्य कह सके हम इसे. We developed this whole thing into something called a sure strategy. और इस सब को मिलाकर हमने इसे एक रणनीति के स्वरूप में विकसित किया जिसे हम श्योर कहते हैं अंग्रेजी में. And SURE stands for send, unify, release and equip. और ये श्योर अंग्रेजी के 4 अक्षर है SURE, जो पहला है सेंड यानी कि भेजना, यूनिफाई यानी कि संयुक्त करना या एकीकृत करना, और रिलीज यानी कि छूट देना, और इक्विप यानी कि तैयार करना या लैस करना. Over the many years, we have
requested 4 leaders to gather teams to accomplish these outcomes. और पिछले कुछ वर्षों में हमने अगुओं से विनती की कि आप अपने लिए समूह लोगों के समूह तैयार करें जिससे कि मिलकर आप इन लक्ष्य को पूरा कर सको. Now, all of these people are very busy in their own local churches, but they have gathered a few others from different other churches to serve the purpose of God in as a strategy for commission. और ये जो लोग हैं ये अपने काफी व्यस्त है, अपने स्थानीय कलीसिया में काफी व्यस्त है. इसके बावजूद उन्होंने समय निकालकर एक समूह को तैयार किया अपने साथ में मिलकर अपने इस रणनीति को पूरा करने के लिए. So I've requested all of them to make a little video and present to you in 2 to 3 minutes and present to you what they have accomplished in the past 2020 and what we hope to do in 2021. और मैंने उनसे विनती की है कि वे एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमारे सामने बताए कि उन्होंने 2 से 3 मिनट का वीडियो कि उन्होंने 2020 में क्या हासिल कर पाए और 2021 के लिए उनके पास कौन सी योजनाएं हैं. So these lovely little PowerPoint that is being presented, Mark is doing a brilliant job on this back end and helping us all enjoy the Zoom video, enjoy the Zoom call, and now he's going to serve us by presenting these videos as well to us. और जिस तरह से सुंदर जो है तस्वीर आ रही हमारे सामने, आकृतियां आती है रंग बिरंगी सुंदर रीति से, ये सब मार्क मेहनत कर रहे हैं पीछे रहकर पर्दे के पीछे और काफी बढ़िया रीति से कर रहे हैं जिससे कि हम इस जूम सम्मेलन का आनंद ले सके असरदार रूप से. और अब वे वीडियो भी दिखाने वाले हैं. So let's introduce you to each of the four leaders. Is going to be Praveen, who's handling Send. और हम चारों अगुओं के हम आपके सामने परिचय दे दें. पहले है प्रवीण जो सेंड या भेजने वाली समूह की अगुवाई कर रहे हैं. James, who's serving us in the Unify. और जेम्स जो हमारी यूनिफाई जो है एकीकृत करने के विभाग में सेवा कर रहे हैं. Priscilla is serving us with Release. और प्रिसिला जो हमारी सेवा कर रही है छूट देने के क्षेत्र में. And Rahul with Equip. And Rahul with Equip. James O. Okay, looks like, go ahead. As the Send team, our biggest joy for 2020 was to see the 200 churches target accomplished. Praise God, we today are 219 churches. 2020 की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए वो ये थी कि हम 200 का जो कलीसियाओं का जो टारगेट था वो पूरा हुआ है. इस साल में हम अपने टीम को और मजबूत और बढ़ाना चाहते हैं कि हम 200 से 1000 कलीसियाओं तक पहुंच पाए. This year we want to work on building the Send team stronger and bigger so that we will work towards the 1,000 church goal. We also want to work with churches to see evangelism grow in local churches. We want to see our churches adopt unreached people groups. We want to see if we could do a training program for Hindi church planters this year. हम चाहते हैं कि इस साल हम अपने टीम को बढ़ाए, उसी के साथ सुसमाचार का कार्य स्थानीय कलीसियाओं में बढ़ाए और जो ऐसे जातियां हैं जहाँ पे सुसमाचार पहुंचा नहीं है, हमारी कलीसिया उनको भी उनके लिए प्रार्थना करने लगे. उसी के साथ हिंदी में हम एक चर्च प्लांटर्स ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं. जरूर हमारे लिए प्रार्थना रखें. यूनिफाई, मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर एज वन. एकीकृत करना, एक बनकर आगे बढ़ना. 2020 में जो हम कर पाए उसकी कुछ जानकारी. नंबर 1, महामारी के दौरान हम हमारे कई पास्टर्स को फोन के द्वारा संपर्क किए उनकी हालचाल पूछने के लिए और जहाँ कहीं भी ज़रूरत दिखाई पड़े हमने वहाँ पर मदद पहुँचाने की प्रयास किए. नंबर 2, हमारे जो साझा मूल्य है हमने उन्हें ऑनलाइन माध्यम से हमारे उत्तर कर्नाटका के अगुओं को सिखाया
और यूपी के कुछ अगुओं के साथ में एक भाग भी पूरा किया है। तीसरी बात, हमने एक सर्वेक्षण की शुरुआत की जिससे कि हमारे सभी कलीसियाओं की कायदे अनुसार क्या स्थिति है इसे जानने के लिए 2021 के लिए हमारे पास में कई योजनाएं हैं। नंबर 1, हमारे जो साझा मूल्य है, हम चाहते हैं कि हम उन्हें हमारे जो इतर विभाग है वहां पर हम सिखाए और आगे बढ़ाएं। नंबर 2, हम चाहते हैं कि हमारे विभिन्न राज्य में हम ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें जो कलीसिया के संदर्भ में जो कायदा कानून अनुसार पालन होना चाहिए उसकी जानकारी रखे हो, जिससे कि कलीसिया उनसे मदद ले सके। नंबर 3, इस वर्ष हम क्षेत्रीय अगुओं का इकट्ठा होना और क्षेत्रीय कलीसियाओं का इकट्ठा होने को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं। साथ में हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जो जरूरतमंदों के बीच कार्य है या समाज सेवा का कार्य है उसे भी बढ़ावा मिले, इसलिए हम कुछ कार्यक्रम की योजना किए हुए हैं। अंत में हम चाहते हैं कि इस वर्ष प्रार्थना को भी बढ़ावा मिले और हम जानकारी या मुद्दे इकट्ठा करके प्रार्थना के लिए भी हम योजना करने वाले हैं। Good evening everyone and welcome from Team Release. In 2021 we plan to develop a number of work streams, the first being in the space of identity. We can't be fully released into who God wants us to be unless we fully embrace who we are in Christ. A couple of other work streams that you will hear about shortly will be one that involves the raising, equipping and releasing of worship leaders for the Commission India churches. We're also in the middle of developing a program that involves looking at the releasing of women into more areas of church leadership, and this we hope will start with some focus group discussions that addresses and redesign some of the existing pathways to leadership. We're also looking at curating resources for churches, whether that be existing material that is readily available or perhaps people and speakers that might help you for where your church is at. And to do all this, I'm looking to build a team of people who will lead each of the work streams and work with volunteers so that we can release many people to serve the body of Christ. If you would like to get involved, please get in touch with Mark and let him know. Thank you. Hi, good evening friends. Here is a quick update from Team Equip. Firstly, I want to thank all the pastors for filling our survey form. All those who did, thank you so much. That's so helpful and we are going to work on that form that you've sent us. सबसे पहले टीम एक्विप की तरफ से आप सबको बधाई और धन्यवाद के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं, खासकर उन पास्टर्स का जिन्होंने हमने एक फॉर्म सर्कुलेट किया था नवंबर के महीने में और आप में से कईयों ने उसको भरा और वो हमारे लिए बहुत ही मददगार रहा है। 2020 में हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं। लॉकडाउन के बावजूद मसीह सिद्धांत उदगीर और महाराष्ट्र हम कर पाए हैं, जहां पर 60-70 से भी ज्यादा जो लोग हैं वो प्रशिक्षण इस समय भी पा रहे हैं, तो प्रभु का उसके लिए धन्यवाद। ज्यादातर सब नए लोग हैं। उसके अलावा शास्त्र के शास्त्री जो हमारा प्रोग्राम है जो हम पास्टर्स के लिए करते हैं गोवा के, और उसमें भी 18-20 पास्टर्स प्रशिक्षण पा रहे हैं। सालाना 3 या 4 बार वो मिल रहे हैं और प्रशिक्षण पा रहे हैं। उसके अलावा हमने अलग अलग किताबों को अनुवाद किया है और कई सारी ऑनलाइन रिसोर्सेस को हमने अवेलेबल किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आशीष का कारण बने हैं कई लोगों के लिए। I want to thank God for different things that we managed to do in 2020 despite the lockdown. We've had Masih Siddhant that's rolled out for Udgir and Maharashtra, and combined there are around 70 new believers who are learning foundational teachings. And so that's wonderful. Praise God for that. Besides that, we managed to translate a few resources into different languages and continued our Shastra Ke Shastri, which is our pastors training program in Goa. That's benefiting over 18 to 20 pastors. So praise God for all of that. And quickly in 2021, we are hoping 2021 will be possible. Besides that, we hope to create more online resources that will benefit us, especially foundational videos. And we are also hoping that we can have other resources and training programs that we hope to roll out. Masih Siddhant Plus will continue. And if there is anything that
you desire to see your region being equipped, your church being equipped, please do get in touch. We will be getting in touch with you very soon. God bless you and thank you. जल्दी से बांटू जो प्रिसिला ने हमारे बीच बांटा। प्रिसिला ने कहा छूट देने के क्षेत्र में कि 2021 के लिए काफी योजनाएं बना के रखे हैं। पहली योजना है कि हमारी पहचान के विषय में कि यदि हम नहीं जानते कि मसीह में हम कौन है तो हम पूरी तरह से आजादी से कार्य नहीं कर पाएंगे, वो एक हमारी योजना है। दूसरी योजना है कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाना चाहते हैं जिससे कि हमारे बीच के जो आराधना अगुए हैं वे उभरे, वो मजबूत होकर आगे बढ़ सके, उनको भी लेस करने की हमारी सोच है। और तीसरी बात जो है हम करने की सोच रहे वो है कि हमारे बीच में महिलाओं को छूट देना अगुवाई के क्षेत्र में, और इस विषय में हम चर्चा करते हुए कुछ ऐसे चर्चा के विषय उत्पन्न करने वाले जिससे कि इस पर समूह में चर्चा हो सके कि इसे कैसे आगे ले जाया जा सके। और चौथी बात जो हम करना चाहते हैं कि हम विभिन्न साधनों को इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे कि हमें मिलकर हम इसका फायदा ले सके, तो हम ऐसे साधनों को भी इकट्ठा करना चाहते हैं। और इन चार मुद्दों के साथ में हम ये भी देखने वाले कि प्रिसिला कह रही थी कि मैं इन चारों चीजों के लिए अगुवाई करने के लिए भी लोगों को नियुक्त करने वाली है। और फिर अंत में ये भी कहा है कि यदि आप में से कोई लोग दिलचस्पी रखते हैं इसमें मदद करने, हाथ बटाने के लिए, तो जरूर आप मार्ग से संपर्क करें और वो आपको मार्गदर्शन देगी। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है जेम्स, क्या बात है। Who can do like this kind of translation? मार दिया, सिक्सर मार दिया यार। धन्यवाद धन्यवाद सिडनी। Now, as we are thinking of this sure strategy, by the way, we are all learning. All of us are very busy. Each of the people are very busy, and we are trying our best to try and make this strategy along with 219 churches, and then soon 300 and 500 is all going to be very new for us. And I hope you will join us, bear with us, and serve and throw your lot in as we try and serve into the future. और यदि देखें इसे तो आपको कहो कि हमारे लिए नया है, हम सभी व्यस्त हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं हम किस तरह से सेवा कर सके। हम सोच रहे किस तरह से इन बातों को लेकर मदद कर सके। अभी हम 219 कलीसिया है, 300 हो गए, 500 हो गए आगे, लेकिन हम किस तरह से असरदार रूप से हम सेवा कर सके, हम योजना कर रहे हैं। और हम आशा कर रहे हैं कि आप भी मिलकर आप सहकार्य करेंगे, साथ में समर्थन देते हुए, जिससे कि हम भविष्य में के लिए हम इस रणनीति को आगे ले जा सके, दर्शन को पूरा करने। There are many challenges we are trying to address. One of them is it's so nice to see Krebal and Sengre all the way from Purakhasya, and the languages that we have to serve in all of these different places, from Hindi to Gujarati to Tamil to Malayalam. But the Lord is upon us, and we shall press forward in trying to serve all the churches, including the international churches that are in Bangladesh and in Nepal. Want to try and serve us all to take us forward to see hundreds of churches in tens of nations reaching thousands of people. और कितना बढ़िया लग रहा है हमें हमारे बीच में कृपाल और सिंगरे को देखकर। वहां पर इतनी दूर है और उनकी वो भाषा अलग, और हमारे बीच में अलग अलग भाषाओं की चुनौती है। गुजराती से तमिल है, और उसके बाद में अलग अलग मलयालम है और हिंदी है, और फिर हमारी यही भाषा नहीं परंतु अंतरराष्ट्रीय भी स्तर पे हमारा बांग्लादेश है, दूसरा देश है। इन सबको मिलकर हमें कार्य करना है, लेकिन ये चुनौती है, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर है, उसकी उपस्थिति हमारे ऊपर है, और हम जरूर इस दर्शन को पूरा कर पाएंगे जो है 10 राष्ट्रों में सैकड़ों कलीसियाओं के द्वारा हजारों जीवनों को परिवर्तित होते हुए देखना। My time. Good evening, brothers and sisters. शुभ संध्या भाइयों और बहनों। What an honor it is to bring the word of God to you. ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर का वचन आप तक ला सकते हैं। I wish to thank Vinu for this opportunity of serving the pastors and leaders of Commission. मैं वीनू का खास कर धन्यवाद देना चाहता हूँ ये अवसर के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है कि मैं पासवानों की सेवा कर सकूं। I hope you've had a great last 2 days.
उम्मीद करता हूँ कि पिछले 2 दिन काफी अच्छे रहे हैं And I believe today also is going to be equally exciting. और मेरा विश्वास है आज का दिन भी उत्साहित होगा। So let me start with a joke. तो मैं एक चुटकुले के साथ शुरुआत And the करता joke हूँ has a purpose. और इस चुटकुले का एक मकसद भी So there है। was this professor who asked his students to go and do a research on a subject that he was about to teach. तो ये एक गुरुजी है जो अपने शिक्षकों से कहता है कि किसी एक चीज पर, एक विषय पर अभ्यास करे वो, And he mentioned the title of the subject. और उन्हें जो शीर्षक है उसे बताया So उन्हें। all the students dispersed. जो सारे जो शिक्षक है वो चले गए There was one student who was so eager that he heard the professor barely and then he ran out. और एक ऐसा शिक्षक था, उसने जैसे ही गुरुजी की बात सुनी वो तुरंत दौड़कर चला गया। He went to the college library. जो पुस्तकालय है वहां गया वो। Strangely, he couldn't find anything on that subject. जो विषय दिया गया था उस पर ऐसी कोई किताब उन्हें नहीं मिली। So he then headed to the central library. तो फिर जो एक दूसरा पुस्तकालय है वहां वो गए। Again, he couldn't find anything on that subject. वहां पर भी वो कुछ नहीं पा सके। So he said, okay, let me now go on the internet. तो उसने सोचा अब मैं इंटरनेट पे जाता You हूँ। find everything on the internet, right? इंटरनेट पे तो सब कुछ मिल जाता So he है। went on the internet. तो वो इंटरनेट पे जाता है। But guess what? लेकिन सोचो क्या, He was shocked to find nothing on the internet on the subject. वो हैरान था कि उस विषय पर कोई भी बात नहीं थी। He was so disappointed. वो बहुत निराश The हुआ। next day, all the students came in. दूसरे दिन सारे शिक्षक अंदर आए And the professor picked on this eager student. और ये एक शिक्षक को उस गुरुजी ने पूछा। He said, tell me, my son, what did you find? What was your research on the subject? उसने गुरुजी ने कहा कि बेटा बताओ तुमने क्या पाया इस शीर्षक पर। The student said, Professor, I couldn't find anything on the subject that you mentioned. और उस शिक्षक ने कहा कि गुरुजी जो आपने विषय दिया उस पर मैं कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। The professor said that is not possible because tons of theses have been written on the subject. गुरुजी ने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं क्योंकि इस विषय पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। He said, Sir, I tell you, there was nothing on the internet on oranges and peaches. जो शिक्षक है उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मौसम्बी और संतरे पर तो कुछ भी नहीं लिखा गया है। The professor walked up to him, जो गुरुजी है वो उसके पास आते हैं, gave him a tap on his head, उसके सर पर एक टपली मारते हैं and said the subject was not oranges and peaches. उसने कहा कि जो शीर्षक है वो मौसम्बी और संतरे नहीं था, It was origin of species. वो था कि मुसीबत में साथ। Now this is what Jesus said. अब यीशु ने ये कहा, He who has ears, let him hear. जिसके पास कान है वो सुने। It is very important we hear correctly बहुत जरूरी है कि हम सही सुने and then respond accordingly. और उसकी प्रतिक्रिया सही हो। So brothers and sisters, come, let's pray. तो आओ भाई और बहनों Let us प्रार्थना pray that the करें। Holy Spirit will speak to us. प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमसे We will बातें hear करेगा, His voice हम उसकी आवाज को सुनेंगे and act according to His will. और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। Father in heaven, we thank you for this wonderful opportunity of being together. स्वर्गीय पिता, इस खूबसूरत मौके के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम एक साथ हैं। We thank you for this online medium. धन्यवाद इस ऑनलाइन माध्यम के We लिए। thank you for the fantastic team that has put all of this together. धन्यवाद एक खूबसूरत समूह के लिए जिसने सबको इकट्ठा किया है। Lord, we thank you for your call over our life. हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी बुलाहट के लिए What a हमारे privilege, जीवन what a पर। joy it is to stand alongside the good shepherd and shepherd your people. ये हमारा आनंद और सौभाग्य है कि अच्छे चरवाह के साथ हम भी खड़े रहकर तेरे भेड़ की चरवाई कर सकते हैं। Lord, we were unworthy and yet you held us, you've given us this honor. हम अयोग्य थे परमेश्वर, लेकिन फिर भी तूने हमें ये सौभाग्य दिया है। We pray now, Lord, as we turn to your word, your living, matchless word. हम प्रार्थना करते हैं कि अब जैसे हम तेरे वचन की ओर, तेरे जीवित वचन की ओर आते हैं, May it speak into our hearts. वो हमारे हृदय की गहराइयों में बातें May करे, it touch us and transform us for your glory. वो हमें छुए और हमें परिवर्तित करे तेरी महिमा के लिए। We pray this in your precious name, Lord Jesus. ये प्रार्थना यीशु तेरे पवित्र नाम में करते हैं। Amen. 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 Brothers and Amen. sisters, if you have your Bible, please turn with me to Mark chapter 14. भाइयों और बहनों, अगर आपके पास आपके शास्त्र है तो मरकुस 14:3 और 4 की ओर मुड़े। I'm mentioning a story that's mentioned in all the 4 Gospels. मैं एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो सारे सुसमाचारों में बताया The गया reason I है। picked on Mark is because it's got a added information, a twist. मैंने खासकर मरकुस का अध्याय इसलिए लिया है क्योंकि उसमें एक अलग बात है। It is such a unique story that Jesus, referring to this story, said, ये बहुत ही अनोखी कहानी है क्योंकि यीशु जब इस कहानी का जिक्र करते हैं वो ये कहते He हैं, said, wherever the gospel is preached, कहते हैं कि जहां भी सुसमाचार का प्रचार होगा this story will be mentioned. इस कहानी का जिक्र किया जाएगा। I am sure you've read it. जानता हूं कि आपने शायद ये पढ़ा होगा। In fact, I'm so sure that you've preached on this topic. मुझे यकीनन पता है कि आपने शायद इस विषय पर संदेश भी सुनाया So होगा। let's turn to Mark chapter 14, verse 3 to 6. तो हम मरकुस 14:3 और 6 की ओर मुड़ेंगे। I'm reading from Mark 14, verse 3 onwards. It says,
मैं मरकुस 14:3 के आगे पढ़ रहा हूँ और वो ये कहते हैं, While Jesus was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. तीसरा वचन, जब वह बेतनिया में शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर का पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला. Verse 4 and 5, some of those present were saying indignantly to one another, why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor. And they rebuked her harshly. 4 और 5 कहता है, परंतु कोई कोई अपने मन में रियास कर कहने लगे, इस पात्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य को बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे. Verse 6 says, this is where Jesus speaks up. Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. और ये जो छठा वचन है, यहाँ यीशु कहते हैं, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ कुछ खूबसूरत किया है. Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं? Now, so often we've read, we read stories of the Bible. अक्सर हम शास्त्र में कहानियां पढ़ते हैं. But there are times when a certain word hits you. लेकिन ऐसा होता है कि कभी-कभी कोई एक शब्द है जो हमें छू जाता है. Just 2 weeks back when I was reading this story. और पिछले 2 हफ्ते पहले जब राहुल इस कहानी को पढ़ रहे थे, and I felt God draw my attention to a word that I had never noticed before. परमेश्वर ने मेरा ध्यान एक ऐसे शब्द की ओर लाया जो मैंने पहले नहीं देखा. And interestingly, it's mentioned only in Mark. और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ मरकुस में इसका जिक्र किया गया है. So this is what it says in Mark chapter 14 verse 3. तो मरकुस 14 और 3 वचन में ये कहा गया है. The second half of the story says, जो दूसरा हिस्सा है इस कहानी का वो ये बताता है, she broke the jar. कि उसने उस इत्र के पात्र को तोड़ा. And I felt God draw my attention to this word broke. और मुझे लगा कि परमेश्वर मेरा ध्यान इस शब्द तोड़ दिया इस पर ला रहा था. I wondered why did the woman have to break the jar? तो मैं सोचने लगा कि उसने उस इत्र के पात्र को क्यों तोड़ा. And what is so interesting about breaking the jar? If you've got to pour the perfume, you could have opened the jar and poured the perfume. और अगर इत्र को उंडेलना ही था तो उस पात्र को खोलकर भी उंडेला जा सकता था, उसे तोड़ने की क्या जरूरत थी? I thought of possibly 2 reasons why she broke the jar. मैंने सोचा शायद 2 कारण हो सकते हैं. You could think of more. आपको शायद और याद आए. But one, I felt probably it was sealed in such a way that you had to break it to make sure that the perfume, the expensive perfume that is in there, needs to be poured out. पहली वजह यह हो सकती थी कि उस पात्र को इस तरह से बंद किया गया था कि उसे खोला नहीं जा सकता था, कि जो अंदर का इत्र अगर बाहर निकालना है तो उस पात्र को तोड़ना ही पड़ेगा. It was a normal jar, probably a clay jar. शायद मिट्टी का कोई पात्र था. And yet it had something so precious in it. लेकिन फिर भी उसके अंदर जो था वो बहुमूल्य था. As I was thinking of this, it reminded me of this clay piggy bank that we used to have when we were very small. और जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, मुझे उस मिट्टी के उस बर्तन के बारे में याद आया. जब हम छोटे थे हम उसमें पैसे इकट्ठा करते थे. Not the plastic ones where you can open and remove the money. वो प्लास्टिक के बने हुए नहीं जहाँ पर हम पैसे डालते हैं, ढक्कन खोलकर निकाल सकते हैं. When we were small, you'd get this mud piggy banks which you had to break if you wanted the money inside. जब हम छोटे थे, जिस बर्तन में हम पैसे जमा करते थे वो मिट्टी का हुआ करता था और उसे तोड़ना पड़ता था अगर पैसे चाहिए. And so we kept putting these 25 paise, 50 paise, that's all we got, and we kept, and when it sounded heavy, तो हम ये जो छोटे छोटे सिक्के हमें मिलते थे हम उसमें डालते रहते थे और फिर वो भारी हो जाता था. And one day when we needed it, we would smash the piggy bank. एक दिन जब हमें उस पैसे की जरूरत होती थी हम उस बर्तन को तोड़ देते थे. So that could be a possibility. तो शायद ये एक वजह थी, उसने तोड़ा. Or या the woman would have thought, oh, what's the use of the jar now that the perfume is spent? या शायद उस औरत ने सोचा होगा कि अब जब वो इत्र उंडेला ही जाएगा तो उस पात्र का कोई कारण और कोई वजह और जरूरत नहीं होगी. Whatever the reason is, the point is she did break the jar so that the perfume could be dispensed. जो भी वजह है, लेकिन उसने सोचा कि इस पात्र को तोड़ना जरूरी है. अब जब उसके अंदर इत्र ही नहीं तो उसको रखने का कारण नहीं. And as I focused on this word break, I realized the Bible has more than 300 times this word break or broke. और जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि शास्त्र में 300 से ज्यादा बार इस शब्द टूटना या तोड़ देने का जिक्र किया गया है. That's a lot of times, right? 300 times is a lot of times. और 300 बार तो काफी समय होता है. And I felt the Spirit bring to my attention some stories of break.
और पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसी कुछ कहानियां याद दिलाई जो टूटी हुई चीजों के बारे में थी। There are quite a few stories, but I'm going to mention 3 very quickly. बहुत सारी कहानियां हैं लेकिन मैं 3 का जिक्र करूंगा। The first one is mentioned in the book of Judges chapter 6. पहली जो कहानी है वो न्यायों की कहानी किताब में है, न्यायों 6। The first story that I'm mentioning, there is Moses who broke the tablets, but I won't go there. But this is the story where we hear of a man named Gideon. एक कहानी मूसा के बारे में भी है जिसने उन जो वचन के पत्थर दिए गए थे उन्हें तोड़ा, लेकिन ये वो नहीं है। गिदोन की कहानी से मैं बता रहा हूँ। So this is just a quick background. और जल्दी से पृष्ठभूमि दे दूं। It's been over 50 years now, 40 with Deborah and Barak, and 7 years of absolute turmoil. So it's close to 50 years where God hasn't done anything, anything extraordinary among the Israelites. अब इजरायलियों के बीच कम से कम 50 साल हो गए कि परमेश्वर ने कुछ भी अलौकिक नहीं किया है। It was almost 50 years ago that God rescued the Israelites through Barak and Deborah. बराक और डेब्रा के हाथों से परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया। इस बात को अब कम से कम 50 साल हो They गए। enjoyed peace for 40 years. उन्होंने 40 साल तक शांति का And आनंद then लिया। as you see the cycle of Judges, the Israelites rebelled against the Lord, they forsook the Lord, and they go back to doing evil things. और फिर हम देखते हैं कि इजरायली दोबारा दुष्ट चीजें करने लगते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। And the Lord handed them over to the Midianites and the Amalekites and some countries from the east. So they have plenty of enemies. और मिदियन के लोगों और अमालेकी के लोगों के हाथों में परमेश्वर इजरायलियों को दे देता है। And that's when they cry out to the Lord. और फिर वो परमेश्वर को पुकारते हैं। And God sends an angel और परमेश्वर एक स्वर्गदूत को to भेजता a है man named Gideon, एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसका नाम गिदोन है, who in all likelihood is the most unlikely candidate. और उसे देखा जाए तो वो बिल्कुल ही अयोग्य लगता है And इस कार्य के we know that लिए। encounter that Gideon had with the angel. और हम जानते हैं किस तरह से स्वर्गदूत के साथ उसका परिचय होता है। And it was he put, he's not sure, he's reluctant, he is upset with God. वो उसे पता नहीं, वो हिचकिचा रहा है, गिदोन परमेश्वर से नाराज है। When the angel says it is you God has chosen, और जब स्वर्गदूत उसे कहता है गिदोन तुझे परमेश्वर ने चुना है, he's not very sure, he puts a couple of fleeces. उसे यकीन नहीं, वो कुछ ऐसी परमेश्वर को चीजें मांगता है कि वो करके दिखाए। No, he just says, okay Lord, do this and all of that. And then towards the end he realizes that it is the angel of the Lord. और फिर अंत में उन शर्तों को परमेश्वर के सामने रखने के बाद अंत में उसे पता चलता है कि ये परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत है। So he builds an altar there. तो वहां वो एक वेदी बनाता It's है। called the peace altar, और Shalom. शांति की एक वेदी बनाता है। But this is what happens next. लेकिन वहां ऐसा Now होता Gideon है। has tried the Lord on a few occasions. अब गिदोन ने परमेश्वर की परीक्षा कुछ चीजों में ली है। Now it is God's turn to try Gideon. अब परमेश्वर का समय है कि वो गिदोन की So very परीक्षा quickly, ले। please turn with me to Judges chapter 6 and I'm going to read from verse 25 to 27. तो जल्दी से आप न्यायों की किताब 6 अध्याय की ओर मुड़े और मैं कुछ और वचन पढ़ूंगा। Judges chapter 6 verse 25. This is what the Bible says. That same night the Lord said to Gideon, take the second bull from the father's herd, though one 7 years old. Break down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole besides it. Then build a proper kind of altar to the Lord your God on the top of this height. Goes on to say in verse 27, so Gideon took 10 of his servants and did as the Lord told him. न्यायों 6:25 से पढ़ रही हूँ। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरे 7 वर्षों का बैल ले और बाल की जो वेदी पर तेरे पिता की है उसे गिरा दे और उसे अशरे देवी उसके पास से उसे काट डाल। 25 के बाद हम 27वां वचन पढ़े। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात को किया। Now listen to this carefully. अब ध्यान से सुने। Now this is where Gideon has been commanded something by the Lord. अब परमेश्वर की ओर से गिदोन के लिए एक आज्ञा है। This is Gideon's first step of obedience. ये उसका पहला कदम है कि वो आज्ञाकारी हो। We know he's going to end up being a champion. हम जानते हैं कि वो आगे जाकर माहिर होने वाला A है। champion who would be included in the Hall of Fame of Hall of Faith of Hebrews 11. और वो ऐसा माहिर होगा कि उसका जिक्र इब्रानियों 11 में किया जाएगा जहां विश्वास के योद्धा So है। God wanted Gideon to build an altar. तो परमेश्वर चाहता था
था कि गिदोन एक वेदी बनाए, But before he could build an altar, he had to break an altar. लेकिन एक वेदी को बनाने से पहले उसे एक वेदी को तोड़ना था, An altar that did not belong to the Lord. एक ऐसी वेदी जो परमेश्वर की नहीं थी। He had to destroy something and then build. उसे पहले तो किसी चीज का नाश करना था, फिर किसी चीज को बनाना There था। had to be a break before the build. एक कोई चीज को तोड़ना जरूरी था किसी चीज को बनाने से पहले। Amen. Amen. I hope the Spirit is speaking to you. उम्मीद करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे बातें Brothers and करेगा। sisters, last year has been a break year. जो पिछला साल रहा है वो एक तोड़ने वाला साल It रहा has है, kind of broken us. हमें अंदर से तोड़ दिया है। It has broken our rhythm of meetings, our gatherings, जिस तरह से हम अपनी सभाएं करते थे उसे तोड़ दिया, our social, activities, हम जो सामाजिक कार्य करते थे the उसे, way we work, जिस तरह से हम काम करते the way हैं, we live. जैसे हम जीते हैं, It's been a massive break year. बहुत ही तोड़ने वाला साल रहा It's है। been a year where we weren't expecting that to happen, but it's broken us. एक ऐसा साल था जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने हमें तोड़ दिया। It's broken our reliance. उसने हमारे भरोसे को It's तोड़ broken दिया our है, style. हमारा जो तरीका है उसे तोड़ दिया है। Dare I say, it's broken our pride. हमारे घमंड को एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो तोड़ दिया And है। before we build something new, और इससे पहले कि हम कुछ नया बनाएं, before we build something glorious, इससे पहले कि हम कुछ महिमामय बनाएं, it is important to break the altars of Baal. जरूरी है कि जो बाल की वेदी है उसे हम तोड़ दें। Anything that is not of God. हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं This year है। has given us an opportunity to sit back and examine what is of the Lord and what are peripheral things. इस साल ने हमें ये मौका दिया कि हम कुछ समय निकालें ये देखने के लिए परमेश्वर के लिए क्या महत्वपूर्ण है और बेकार की चीजें क्या है। Like Gideon. क्यों गिदोन? Gideon was quick to go and build an altar. गिदोन तुरंत जाकर उस वेदी को बनाता If you look at है। verse 24. अगर आप 24वें वचन को But देखें, God wanted him to do it correctly, properly. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो उसे सही रूप से करे। So God said to Gideon, इसलिए परमेश्वर ने गिदोन से first कहा, break the altar that's not mine and then build the altar for me. पहले उस वेदी को तोड़ जो मेरी ओर से नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और फिर ऐसी वेदी बना जो मेरी महिमा के लिए होगी। The second story you see in 1 Kings chapter 19, और दूसरी कहानी को हम एक राजा 19 में देखते verse हैं 21. और 21वां I'm वचन। reading 1 Kings 19 verse 21. एक राजा 19 और 21 को पढ़ रहा This हूँ। is the time when Elijah is now going to hand over the mantle to his apprentice named Elisha. अब ये वो समय है जब नबी एलिया अपना जो दारोमदार है वो अब एलीशा को देने वाला है। And we know Elisha is a well-off guy. और हम जानते हैं कि जो एलीशा है वो काफी पैसे वाला व्यक्ति है। His father is a rich man, seems like a rich man. उसका जो पिता है वो ऐसा लगता है काफी धनी है। He's got 12 sets of oxen. उसके पास 12 ऐसी जोड़ियां हैं बैलों And the की, 12th one, Elisha is riding himself. और जो 12वीं जोड़ी है उस पर एलीशा ही सवार है। And then that's where the drama happens. Elijah walks in, throws his mantle, shawl, whatever on Elisha and calls him to come and serve the Lord. और ये ऐसा वो ही समय है जब एलिया वहां आता है, अपनी उस चादर को एलीशा पर फेंकता है और फिर वो उसके साथ हो जाता Now है। Elisha has received a fresh calling from the Lord. अब परमेश्वर की ओर से एक ताजी बुलाहट को पाया है एलीशा ने। We believe every leader in commission is called by the Lord. हमारा विश्वास है कि हर एक अगुवे को जो कमीशन में है परमेश्वर की ओर से एक बुलावट है उनके Amen. जीवन God पर। has called us to do extraordinary things for Him. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम अलौकिक कार्य करें उसके लिए। Elisha would go on to even supersede Elijah's miracles. अब जो चमत्कार एलाइजा ने किए थे उससे ज्यादा एलीशा करने वाला He था। would be one of the legends of the Old Testament. वो एक बड़ा दिग्गज होने वाला था पुराने करार Someone का। that even Jesus would mention in his conversations later. एक ऐसा व्यक्ति जिसका जिक्र यीशु मसीह भी करने वाले थे। But look at what happens in verse 21. अब 21वें वचन में देखो क्या होता 1 है। Kings 19 verse 21. एक राजा 19 और 21वां वचन। Elisha left Elijah and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल को लेकर बलि किया और बैलों का जुए का सामान जलाकर मांस पकाकर अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। Wow. So this is what happens. अब ये बहुत ही अद्भुत है। Elisha has now got to simply follow Elijah.
अब एलीशा को सिर्फ ये करना है कि एलिया के पीछे जाना है, But he pauses. लेकिन वो रुकता है। He says, you know what? कहता है, Before I embark on a new journey, वो कहता है कि इस नए सफर पे जाने से पहले I need to have a closure. मुझे कुछ चीजों का अंत करना है। What's the closure? और ये अंत क्या He है? says, I'm going to go back to my parents वो कहता है कि मैं अपने माता पिता के पास जाऊंगा and say bye. और उन्हें कहूंगा कि मैं जाने But there's वाला हूँ, something else I'm going to do. लेकिन और कुछ भी है जो मुझे करना Before है। I embark on this new journey of faith, इस नए विश्वास के सफर पे जाने से पहले I'm going to break all that has been my reliance. वो सारी चीजें जिस पर मैं निर्भर था, मैं उन्हें तोड़ दूंगा। So he goes back and it doesn't only break, he just slaughters the oxen. वो सिर्फ तोड़ता ही नहीं लेकिन उन बैलों की बलि चढ़ा देता He है। breaks the plow, he burns them. वो जो जुए का सामान है उसे तोड़ देता है, जला देता है। So it's gone. There is no security now. अब वो चला गया है, कोई भी सुरक्षिता नहीं है वहां। Now he is fully dependent on his God. अब वो पूरी तरह से अपने परमेश्वर पर निर्भर है। Hallelujah. हालेलुया। Did you read that? क्या आपने ये पढ़ा? I felt this is what the Spirit told me. मुझे लगा पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बातें की। Before you put your hand to the plow, इससे पहले कि तुम अपना हाथ उस जुए पर the डालो, plow that Jesus mentioned in Luke chapter 9 verse 62, और वो वही जुआ जिसका जिक्र यीशु मसीह लूका 6 और 62 में करता है, this is what Jesus said. यीशु ने ये कहा, No one who puts his hand to the plow कोई भी जो अपना हाथ जुए पर रखता है and removes it, और फिर उसे पीछे कर he देता is है, not fit for the kingdom, the service in the kingdom. वो परमेश्वर के राज्य में सेवा करने के योग्य नहीं No, he is है। not fit for it. नहीं, वो उसके योग्य नहीं What he is है। basically saying is, once you put your hand to the plow, don't remove it. और यीशु सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक बार तुम अपना हाथ जुए पर लगाओ तो वहां से हटाना मत। I know 2020 has been that kind of a year. और शायद 2020 ऐसा साल रहा है। We may have not removed our hand, but it definitely shook a bit. हमने शायद हाथ हटाया नहीं, लेकिन हाथ काफी हिल गए हमारे। कांप रहे थे हाथ, है कि नहीं? है ना? You holding the plow, but you're like, Lord, what is happening? Where is it going? हम उस जुए को काप कर पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर ये कहाँ जा रहा है। Seemed like we were losing control. ऐसा लग रहा था जो नियंत्रण है हमारे हाथ से छूट रहा Probably था। God was doing it. और शायद परमेश्वर ही ये It कर could be रहा that there है। were certain plows in our lives हो सकता है कुछ ऐसे जुए हैं हमारे जीवन that में needed to be destroyed, that needed to be broken, that needed to be burned. जिन्हें जरूरी था कि उनका नाश किया जाए, उन्हें तोड़ा जाए, उन्हें जलाया जाए। Hallelujah. हालेलुया। This is what Elisha did. एलीशा ने यही किया। Before he could put his hand to the plow of God, इससे पहले कि वो परमेश्वर के जुए पर अपना हाथ रखे, he went back and burned every plow that was not of God. वो पीछे जाकर वो सारी जुओं को जला देता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, you and I are called to put our hand to the plow आपको और मुझे बुलाया है कि हम अपना हाथ उस जुए पर रखें and not turn away, और फिर वहां से मुड़े नहीं, not let go of it, उसे छोड़े नहीं। irrespective of what happened or what will happen. इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है या क्या होने वाला है, But before we put our hand to the plow, लेकिन उस जुए पर हाथ रखने से पहले we are called to destroy, to burn that plow that is not of God. हमें बुलाया गया है कि उन जुओं को जलाए जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। I pray that the Spirit continues to speak to you. मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा The है। third story of break is the best. और जो तीसरी कहानी है इसे तोड़ने के बारे में, ये सबसे उत्तम है It refers to our Lord Jesus Christ, और ये यीशु मसीह के विषय में who है, broke his body on the cross, जिसने क्रूस पर अपने शरीर को तोड़ा, who shed his blood, अपने लहू को so बहाया, that you and I can have the forgiveness of sins, ताकि आप और मैं पापों की क्षमा पा so सकते that you हैं, and I can be reconciled with our Father in heaven. ताकि आपका और मेरा मेल मिलाप हमारे स्वर्गीय पिता के साथ It हो happened जाए। quite often in the Bible, अक्सर शास्त्र में ऐसा होता है, especially in the Gospels. खासकर सुसमाचार में, I'm referring to Matthew 26 verse 26. और मैं मत्ती 26 और 26 का जिक्र कर रहा Jesus हूँ। sitting at a table with his disciples यीशु अपने शिष्यों के साथ उस मेज पर बैठा है, took bread उसने रोटी को लिया and broke it. और उसे तोड़ दिया, He broke it, उसने उसे तोड़ दिया, symbolizing what he was going to do on the cross. और ये उस बात को दर्शा रहा था कि वो क्रूस पर क्या करने वाला था। And we know that. और हम जानते The हैं Bible इसे। says, शास्त्र कहता every है time we break bread, हर बार जब हम रोटी तोड़ते हैं, we remember what the Lord has done for us. हम उस कार्य को याद करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए We किया। look to the cross हम क्रूस की ओर देखते and the हैं perfect sacrifice. और वो सिद्ध बलि जो वहां चढ़ाई गई। Hallelujah. हालेलुया। Before I end, I want to say this. अंत करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, To dispense the expensive perfume, उस अमूल्य इत्र को बाहर लाने से पहले
That woman had to break the jar. उस औरत को उस पात्र को तोड़ना पड़ा। Brothers and sisters, भाई और बहनों, many of us have dispensed perfume last year. हम में से काफी लोगों ने पिछले साल उस इत्र को बाहर निकाल दिया The है। perfume of caring and sharing, वो इत्र जहाँ हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बांटते हैं, loving and giving, एक दूसरे से प्रेम करते हैं या देते हैं, अर्पण, sacrificing and blessing. बलिदान करने के विषय में या आशीष के विषय में, These have been expensive perfume, ये एक बहुत ही अमूल्य इत्र है। but it has come at a cost for each one of us. लेकिन हम सबको एक कीमत चुकानी पड़ी है इसके I know लिए। many of you have gone out of your way मैं जानता हूँ आप में से काफी लोगों ने दूसरों की सेवा की to है, not only care for our own, अपनों की ही देखभाल करने के but लिए even नहीं, care for those who were not our own. लेकिन उन लोगों की भी देखभाल की है जो आपके अपने नहीं हैं। We've dispensed the love and the compassion of God to many, many people around us. परमेश्वर का प्रेम और उसकी करुणा हमने लोगों तक पहुंचाई है। And now, if you look at I, अगर हम अपनी साधारण आंखों से इसे it may देखें seem like a waste. तो ऐसा लगेगा कि ये तो व्यर्थ हुआ। You know, like the disciples said, what a waste. जैसे शिष्यों ने कहा ये तो व्यर्थ किया है, But this is what Jesus says. लेकिन यीशु ने ये कहा It is far from waste. कि ये व्यर्थ नहीं है, It is a beautiful thing. ये एक खूबसूरत चीज है। Now, this is what the Lord says to you. और परमेश्वर आपसे ये कहता What है, you did for me, what you are doing for me, जो तुमने मेरे लिए किया या जो तुम मेरे लिए कर रहे हो, it is a beautiful thing. वो एक खूबसूरत चीज है। Hallelujah. हालेलुया। Turn to your neighbor and say this. अपने पड़ोसी की ओर मुड़कर ये If कहो, there's someone sitting with you, अगर आपके साथ कोई बैठा है, what we did was a beautiful thing. जो हमने किया वो खूबसूरत A था। beautiful thing in the sight of our Lord Jesus. परमेश्वर की नजरों में, यीशु मसीह की नजरों में खूबसूरत चीज। Towards the end of the story, this is what Jesus said. इस कहानी के अंत में यीशु ने ऐसा कहा, What this woman has done will be mentioned to generations to come. जो इस महिला ने, जो इस स्त्री ने किया है, वो आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों पर इस बात का जिक्र किया जाएगा। Brothers and sisters, as we progress ahead, जैसे हम आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों, what we did last year, जो हमने पिछले साल किया, what we've done in these past 2 months, ये इस पिछले 2 महीनों में जो हमने किया है, it'll be a part of our story. वो हमारी कहानी का हिस्सा It'll होगा। be a part of our script when years down the line, when we look back and narrate our stories, बहुत सालों बाद जब हम अपनी इस कहानी का जिक्र करेंगे, we will tell the story of 2020 to our future generations. हम 2020 की कहानी हमारे आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। We will speak of how we persevered, हम ये कहेंगे कैसे हम धीरज के साथ आगे बढ़ते how we रहे, rose in faith, कैसे हम विश्वास में उभरे, how we ventured into new things. कैसे हमने नई नई चीजें की। We were afraid and yet we moved on. हम डरे थे, हम घबराए थे, लेकिन हम आगे We बढ़े, kept pressing on. हम आगे बढ़ते रहे। Hallelujah. हालेलुया। The Lord delights in all of that. परमेश्वर इन सारी बातों में आनंद लेता है। May I say this मैं आपसे ये कहूँ, with great humility? I have no credibility to say this, बहुत नम्रता के साथ मैं ये बात कहना but I चाहता say हूँ, this, well done. आपसे कहता हूँ शाबाश। Many of you have inspired me. आप में से बहुत लोगों ने हमें प्रेरणा दी है। Thank you. धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको Our आशीष दे। stories will be fascinating stories for decades to come. आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी कहानी बहुत ही अनोखी होगी। There may be times even in the future शायद भविष्य में ऐसे समय और भी where आए we will go through a break. जब हम वापस ऐसे समय से गुजरे जहां हमें लगेगा कि चीजें टूट रही हैं। Even now, इस समय भी God wants us to break some altars, शायद परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ वेदियों को तोड़ दे, burn some plows कुछ ऐसे जुओं को जला दे, as we plan to regroup, जैसे हम दोबारा मिलने के लिए तैयारी as we करें, plan to assemble, जैसे हम दोबारा इकट्ठा होने की as तैयारी we plan करें। to go for 1,000 churches by 2030. 2020 तक हजारों की कलीसियां हम बनाएं। Let's be willing to break. आओ हम तैयार हो जाएं तोड़ने के लिए। This was the title of my message. ये मेरे संदेश का शीर्षक था। I didn't want to bring it at the start because it would have been controversial. मैं शुरुआत में ही ये बात नहीं कहना चाहता था, But the title of my message is लेकिन मेरे संदेश का शीर्षक है Give God a break. परमेश्वर को तोड़ने दो। I hope you take it in the right context. उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सही रूप से लेंगे। Break is good. जो तोड़ना है वो अच्छा है। Give God a break. परमेश्वर को तोड़ने दो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।